محمود خان اچکزئی سے انتہائی مشکور و ممنون یم چې نن دې تاریخي جلسې دعوت ماته راکړی دی. زه نن فخر محسوس کوم چې د بلوچستان په خاوره باندې ولاړ یم او خپلو پښتنو ته مخاطب یم. زه خپلو ټولو درنو غیرتمندو پښتنو ته د زړه د کومې نه د اختر مبارکۍ وایم. اخترم ډېر ډېر مبارک شه. په سټیج باندې ناست مرکزی رهنما نواب ایاز صاحب، رحیم صاحب، صوبائی صدر سردار امجد صاحب، د پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ، MNA عادل بزئی اور نور د پاکستان تحریک انصاف اور د پختونخوا ملی عوامی پارٹی څومره مشران ناستی او ماته مخامخ څومره د پاکستان تحریک انصاف او د پختونخوا ملی عوامی پارٹی کارکنان ناستی ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو پښتنو، نن تاسو ته پته ده چې 23 مارچ دی. په 23 مارچ باندې 23 مارچ 1940 باندې قرارداد پاکستان پیش شوی و چې د ستاسو په علم کې چې هغې قرارداد کې د ټولو نه مین خبره دغه وه چې برصغیر پاک و هند کې چې په کومو ځایونو کې د مسلمانانو اکثریت دی پکار دی چې د هغې نه یو ملک جوړ شي او هغې ته به د پاکستان نوم ورکړو. دا ولې؟ دا د دې دپاره چې په مونږ باندې هندوان ډېرو مسلمانان کم وو. نو دا یره وه که سبا د مسلمانانو چې کم اقتدار هغه ختم شو نو دلته چې کم مسلمانان دي په دې باندې به ظلم کیږي، په دې باندې به جبر کیږي، د دې به د کور څادر د هغې عزت د هغې ابرو محفوظه نه وي. نو نن زه د ستاسو نه تپوس کوم چې نن خو دلته د مسلمانانو حکومت دی، په دې ملک باندې نن مسلمانان مسلط دي. نن بیا د پښتنو عزت و ابرو، نن بیا د پاکستانیانو عزت و ابرو، د هغې جان د هغې مال ولې تحفظ نشته؟ زما پښتنو همیشه یاد ساتئ چې په ملک باندې قابض کم مایند سیټ دی چې د 1947 نه واخله تر ننه پورې هغو پښتنو ته ښه نظر نه دی کړی. هغو همیشه د پښتنو نسل کشي کړې ده. هغې همیشه په پښتنو باندې هغه خلک مسلط کړي دي چې کم د دوی چمچي. خو نن الحمدلله په پښتنو کې هغه خلک راوچت شوي دي چې نه د دوی بدماشي مني، نه د دوی ټنډه مني، نه د دوی ټوپک مني. ملګرو پښتنو همیشه یاد ساتئ چې د پښتنو کومه خاوره ده هغه د قدرتي وسایلو نه مالامال ده، هغه د معدني ذخایرو نه مالامال ده. چې چرته قدرتي وسایل دي هلته مسایل دي، چې چرته قدرتي ذخایر دي
الته مسائل دي. نو یاد ساتئ چې دا د نور څه جنگ نه دی، دا د ذخایرو، دا د وسایلو جنگ دی چې په موږ باندې همیشه مسلط شوی دی. ملګرو پښتنو، په 23 مارچ 1940 کې خدا فیصله وشوه چې یو ملک به جوړیږي چې چلته و چرته به د مسلمانانو حکومت وي، چې چرته به حقیقي جمهوریت وي، چې چرته به د آئین او د قانون بالادستی. 1947 کې 14 اگست 1947 کې هغې ته عملي شکل هم ورکړلی شو. خو نن خو 2026 دی، نن 23 مارچ 2026 دی. نن هماغه د انګریزانو غلامان په موږ باندې مسلط دي. موږ مخکې هم آزاد نه وو، موږ نن هم آزاد نه یو. مخکې به هم د انګریزانو دلالي کوله دې خلکو. نن هم په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ چې کوم دی سلوټ کوي، سلوټ ورته کوي که نه کوي؟ سلوټ ورته کوي که نه کوي؟ زه هغه وزیر اعظم خپل اډو منم نه، زه غیرتمند پاکستانی یم، زه غیرتمند پښتون یم چې کوم وزیر اعظم د امریکې صدر ته سلوټ کوي هغه زما وزیر اعظم نه دی. نه منو. ملګرو پښتنو، چې څنګه تاسو ته پته ده زمونږ دا میډیا والا ملګریم دي، دی وایي چې اردو کې خبره وکړه، خو مشر راته ویلي وو چې تقریر پکار دی چې پښتو کې. خدا دی چې پښتانه هم ویښ دي او په هر څه باندې خبر دي، خو چې کم چې دا کم ویښو دي دا را په سوال غواړي او دا په اردو کې لږ په پښتو کې پوهېږي. ملګرو میرے عزیز پاکستانیوں، آج 23 مارچ 2026 ہے. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوا تھا، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جہاں پر مسلمان اکثریت ہوں گے وہاں پر ہمارا ایک ملک ہوگا، جہاں پر حقیقی جمہوریت ہوگی، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، جہاں پر عوام کی حکمرانی ہوگی اور اس کا نام پاکستان ہوگا. لیکن بدقسمتی سے اس وقت سے لے کر آج تک 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک نہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئی ہے، نہ آئین اور قانون کی بالادستی آئی ہے، نہ انصاف آیا ہے اور نہ ہی بدقسمتی سے کبھی ہم آزاد ہوئے ہیں. پہلے ہم انگلینڈ کے انگریزوں کے غلام تھے، آج ہم کسی اور کے غلام ہیں. تب بھی ہم غلام تھے، آج بھی غلام ہے. تب بھی ہمارے حکمران انگریزوں کو سلوٹ مارتے تھے، آج بھی ہمارا جعلی وزیر اعظم کسی دوسرے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے. میرے پاکستانیوں، حقیقی جمہوریت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر آپ سب لوگ اس گراؤنڈ میں اکٹھا ہے تو یہ سیٹ بھی جو ہے آپ لوگوں سے چھینی گئی ہے، آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. آپ نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا اور بیلٹ باکس سے نکلا کسی اور کا. بلوچستان کے عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا لیکن نکلا کسی اور کو. 17 سیٹوں سے یہ جعلی حکومت آج وفاق پر قابض ہے. بلوچستان میں بھی جعلی حکومت ہے، پنجاب میں بھی جعلی حکومت ہے،
सिंध में भी जाली हुकूमत है, आजाद कश्मीर के वोट पर भी डाका डाला गया है, गिलगित बल्तिस्तान के वोट पर भी डाका डाला गया है। सिर्फ वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो अवाम की ताकत से आई है और जोरे बाजू से आई है। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, आज पूरे पाकिस्तान में इस जाली हुकूमत ने और इस जाली हुकूमत के लाने वालों ने जो जुल्म, जो जबर, जो फसाइयत शुरू की है, आप सबको पता है। यहां बलोचिस्तान में बलोचों की नस्लकुशी हो रही है, बलोच नाराज है। यहां बलोचिस्तान में और वहां खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों की नस्लकुशी हो रही है, पख्तून नाराज है। पंजाब में पंजाबियों की इज्जत और आबरू के साथ खेला जा रहा है, उनकी चादर और चार दीवारों की पामाली हो रही है, पंजाबी नाराज है। सिंध में सिंधियों की हकूक को पामाल किया जा रहा है, उनकी हक तलफी हो रही है। आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों की हक तलफी हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की हक तलफी हो रही है। पूरा पाकिस्तान जो है डूब रहा है, पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में। क्यों? क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही पाकिस्तान नहीं है, इनका इंटरेस्ट है आपके खून पसीने की कमाई पर डाका डालना, पैसे चोरी करना और यहां से लेकर बाहर ले जाकर वहां पर जजीरे और फ्लैट खरीदना। ये इनका इंटरेस्ट है। इनका इंटरेस्ट ये है ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, इनके साथ कोई पॉलिसी ही नहीं है, इनका कोई मंशूर ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करें। ये सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं जो इनके खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। जिस तरह मिली मशर महमूद खान अचकजई साहब, उनकी पार्टी, जिस तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल तमाम जमातें, ये उनके खिलाफ हैं, उनको खत्म करने में लगे हुए हैं। इनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन जो जमहूरियत पसंद है, जो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में हकीकी आजादी चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो पाकिस्तान में इंसाफ चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आजाद मीडिया की बहाली चाहते हैं, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, वो लोग अब लड़ेंगे, वो लोग आवाज उठाएंगे, वो लोग सड़कों पर आएंगे, वो आपकी आंखों की में आंखें डालकर बोलेंगे कि तुम्हारी कोई पॉलिसी हमें मंजूर नहीं है। हम उस हर पॉलिसी से बगावत करेंगे जो बंद कमरों में होगी। हम उस हर पॉलिसी से, उस हर पॉलिसी से बागी है, बागी है, बागी है जो इनके इंटरेस्ट में है, जो अवामी मफाद में नहीं होगा। हम उस किसी भी पॉलिसी को नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह के आपको पता है कि जो हमारे हमसाए मुमालिक हैं, अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की पॉलिसी पर जो ये बंद कमरों में बनाते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, तो हमें कहते हैं कि अफगानिस्तान चले जाओ। जब हम उनकी बंद कमरों की पॉलिसी पर तनकीद करते हैं कि ईरान के मामले में कौम को और पार्लिमान को एतमाद में लो, तो कहते हैं कि ईरान चले जाओ। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है? ये पाकिस्तान मेरा है, मैं हूं इस पाकिस्तान का मालिक, मैं हूं पाकिस्तान का आम शहरी, और पाकिस्तान का आम शहरी ही रियासत है, रियासत है, रियासत है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम
टुकड़ों में बंट रहे हैं। कोई बलोची, कोई पख्तून, कोई पंजाबी, कोई गिलगिती, कोई कश्मीरी, कोई सिंधी। पाकिस्तान में आप इस वक्त एक ही लीडर है जिस पर पूरा पाकिस्तान मुतफिक है, जो कौमी यकजहती की अलामत है। वो अडयाला जेल में नाहक कैद है। उसका नाम है इमरान अहमद खान। इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान यासी। जो कौमी यकजहती की अलामत है, जो नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है, जिसके साथ विजन है, जो कुफार की सरजमीन पर, कुफार के सामने, कुफार की आंखों में आंखें डालकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोलता है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, जो इस्लामोफोबिया का नाम लेता है, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलता है। पाकिस्तानियों को वही लीडर चाहिए है और वो लीडर ही पाकिस्तानियों को मुतफिक कर सकता है, वो ही पाकिस्तान को संभाल सकता है, वही पाकिस्तान को उठा सकता है, वही पाकिस्तान को तरक्की दिला सकता है, वही पाकिस्तान को खुददार कौम दिला सकता है, वो पाकिस्तान को खुद मुख्तारी दिला सकता है। बाकी पाकिस्तान में कोई नहीं बचा। लेकिन बदकिस्मती से वो अडयाला जेल में है। वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो अदालतों से नाउम्मीद हो चुका है। कल उसका बेटा ट्वीट करता है, जो जुडिशरी के बारे में वो बोलता है, वो आप सबने सुना। वो मायूस हो चुका है। उसको पता है कि ये अदालतें यरगमाल हो चुकी है। उसको पता है कि पार्लियामेंट यरगमाल हो चुकी है। उसको पता है कि तमाम इदारे यरगमाल हो चुके हैं। अगर वो आज बिगड़ा है, डटा है, नहीं झुक रहा, तो वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। हमने निकलना है इंशाअल्लाह ताला उसके लिए। हमने उसके लिए आवाज भी उठानी है। हमने उसके लिए रोडों पर भी आना है। हमने उसके लिए गोली भी खानी है। इंशाअल्लाह ताला इस दफा निकलेंगे तो सर पर कफन बांध के निकलेंगे। इस दफा निकलेंगे तो दो ही नारे होंगे, आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। इसके लिए तैयारी जरूरी है। उस तैयारी में मैं लगा हुआ हूं। मेरी पूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगी हुई है। पूरी पाकिस्तान जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो लगी हुई है। हमारे मिली मशर महमूद खान अचकज़ई साहब को, अलामा नासर अब्बास साहब को, इमरान खान साहब ने ही इख्तियारात दिए हैं, मुज़ाकरात का भी और एहतजाज का भी। तो हम आप लोगों की तरफ भी देख रहे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर फैसले में खड़े हैं। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा सीना होगा, मैं सबसे आगे होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है स्ट्रीट मूवमेंट की, वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज बलूचिस्तान में भी 2-3 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह ताला आजाद जम्मू कश्मीर वालों, कश्मीरियों, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं इंशाल्लाह ताला। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मियांवाली वालों, आप जो है मेरे लीडर का शहर है। इंशाल्लाह ताला मैं मियांवाली भी आ रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी भी आ रहा हूँ। अब इस तहरीक को इंशाल्लाह मजीद तेज करेंगे। इंशाल्लाह ताला मजीद जदोजहद तेज करेंगे। आप लोगों ने हमारा साथ देना है। आप लोगों ने हमारे साथ खड़े रहना है। आप ही हमारी ताकत है। हम बूट पॉलिशियां नहीं है। आवाम की ताकत ही हमारी ताकत है। आप लोग ही हमारी ताकत है। आप लोगों ने हमारी ताकत
बने रहना है, आप लोगों ने मायूस नहीं होना है। हम आपसे वादा करते हैं, महमूद खान अचकजई साहब की तरफ से और मैं अपनी तरफ से और जो हमारी बाकी लीडरशिप है उनकी तरफ से मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो जाए, हमें नहीं चुका सकती इंशाअल्लाह ताला। पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी हो जाए, हमारी कीमत नहीं लगा सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ आप लोगों ने एतमाद रखना है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे। मैं आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और खिराज तहसीन पेश करता हूं आप सबको। जिस तरह आप लोग बैठे हैं तंजीम के साथ, इत्तेहाद के साथ, वाकई में मैं आपसे मुतासिर हुआ हूं। इतनी सख्त गर्मी में, इतनी धूप में आप मुसलसल बैठे रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आपके हौसले की दाद देता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग।